गोल्डन वीज़ा एक बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक है और बहुत सारे लोग इसको लेना चाहते हैं, लेकिन मैं थोड़ा-सा इसके अंदर जो मिसकॉन्सेप्ट्स हैं, वो क्लियर करना चाहता हूँ। गोल्डन वीज़ा इटसेल्फ आपके लिए सारे के सारे प्रॉब्लम्स का हल नहीं है, सॉल्यूशन नहीं है। उसका रीज़न कुछ इस तरह से है कि गोल्डन वीज़ा सिर्फ़ आपको एक अपॉर्च्युनिटी देता है कि 10 साल का गोल्डन वीज़ा आप ले लेंगे यूएई के अंदर रहने के लिए और वो आप फिर बगैर किसी इश्यू के रह सकते हैं। लेकिन यूएई इटसेल्फ एक एक्सपेंसिव जगह है। यहाँ पर रहना, यहाँ पर सस्टेन करना इतना आसान नहीं है। मेरी आज की जो वीडियो है इसके अंदर मैं एक बात करूँगा आपसे। मैंने एक ईमेल रिसीव की है अभी कुछ दिनों पहले और उसके अंदर एक जो पाकिस्तान से एक साहब हैं उन्होंने मुझे बताया कि बेसिकली वो गोल्डन वीज़ा के ऊपर पाकिस्तान से यहाँ पर आए थे और गोल्डन वीज़ा बाय द वे आसान भी नहीं होता। कुछ केसेस के अंदर आपको 2 मिलियन दिरहम्स की प्रॉपर्टी खरीदनी होती है और उसको रखना पड़ता है अपने साथ, तब जाके वो 10 ईयर्स का आपको गोल्डन वीज़ा मिलता है और वो जब तक आपकी वो प्रॉपर्टी है, जब तक वो गोल्डन वीज़ा रहेगा, जैसे ही आप प्रॉपर्टी बेचेंगे तो गोल्डन वीज़ा से भी आप हाथ धो बैठेंगे। तो इट इज़ इम्पोर्टेंट कि आपको आपकी ये कंसिडरेशन में होना चाहिए कि गोल्डन वीज़ा के क्या प्रोज़ हैं और कॉन्स तो मैं नहीं कहूँगा उनको, लेकिन उसके जो मिसकॉन्सेप्ट्स हैं कि आपको अगर गोल्डन वीज़ा मिल गया तो सब कुछ हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। तो आज इस ईमेल की तरफ चलते हैं और उसके बाद फिर फर्दर बात करते हैं। अच्छा, ईमेल पे जाने से पहले प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें चैनल को। इस चैनल के ऊपर हम बात करते हैं पर्सनल फाइनेंस की, प्रोडक्टिविटी की और इसके अलावा मेरा एक न्यूज़लेटर भी है जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक हुआ हुआ है, उसको आप जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। पेट्रियन पे सपोर्ट करने के लिए patreon.com/वली खान का लिंक है, उसको जाके आप देख सकते हैं, नीचे उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है मैंने। लेट्स गेट बैक टू द ईमेल नाउ। Email है, dear Wali, I hope this email finds you in good health and is high spirits. I'm writing to seek your advice regarding a challenging situation I am currently facing as a financial expert and someone who I follow. I respect your views. I believe your insight and guidance would be invaluable. Allow me to introduce myself first. My name, again, I'm not going to take the name. And I'm a filmmaker from Pakistan. I'm currently residing in Dubai with my family, including my spouse, and I won't mention the number of children as well, so that आइडेंटिटी फिर भी थोड़ी सी बची रहे। वी आर ग्रेटफुल फॉर टू बी लिविंग इन द ऑन द गोल्डन वीजा which has provided us stability and security. When I initially moved to Dubai, the exchange rate between the dirhams and the Pakistani rupee was around 28 PKR. One dirham is 28 PKR. However, over the time, the PKR has significantly depreciated, and the currency exchange rate now stands at 85 rupees, which is huge. And I'm really disappointed as well myself क्योंकि खैर अभी बात करते हैं इस बारे में। This depreciation coupled with stagnant income has made increasingly challenging for me to manage our expenses. I have been supporting my family's expense by using the earnings I receive from my work back home in Pakistan. Unfortunately, with the PKR's depreciation, the purchasing power of my earnings has diminished considerably. Despite this financial strain, my family and I are reluctant to move back to Pakistan as we have become accustomed to the life we have built here in Dubai. Give your expertise and experience in this industry. In the industry, I would be greatly appreciated any advice or suggestion you may have regarding the situation. Perhaps you could shed light on potential opportunities or offer insight on diversifying my income sources. Additionally, any strategies to cope with the fluctuation in exchange rate, that would be um, that would be incredibly helpful. Thank you in advance for taking time to read my email and considering for my request and considering my request for advice. I truly admire your work and believe that your guidance could make significant difference in my family's life. I look forward to hearing your thoughts and suggestions. So बेसिकली समवन फ्रॉम पाकिस्तान हैज़ मूव टू दुबई और जिस वक्त ये मूव किए उस वक्त 28 दरम्स का लेट्स से 28 रुपीज़ का एक दरम था। आई वुड से मे बी ये बात होगी कोई 7-8 साल पहले की। आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, अभी मुझे ओवर द टॉप ऑफ बल्कि मैं देख ही लेता हूँ। यस, सो अराउंड कोई 2015 के अंदर 28 रुपीज़ का ये दिरहम था। तो ऑलमोस्ट 7-8 साल के अंदर आप देख रहे हैं कितनी डिवैल्यूएशन हुई है और ये पिछले 2 साल के अंदर तो बहुत ही बुरा हाल हुआ है। तो आई वुड एग्री विद यू कि 7-8 साल में बहुत मसला हुआ है और 7-8 साल के अंदर अगर आपने अपने बिज़नेस को यही सोच के बनाया था कि आप यूएई में रहेंगे और पाकिस्तान से इनकम लेंगे और यहाँ पर एक्सपेंस करेंगे, जो कि अब मैं बहुत सारे लोगों को देख रहा हूँ इस तरह करते हुए, लेकिन क्योंकि उनकी डॉलर डिनोमिनेटेड इनकम होती है तो फिर भी बहुत बेहतर होता है। अगर आप पाकिस्तान में पीकेआर बेस पे जो इनकम लेकर फिर उसको दुबई में खर्च करेंगे, तो डिवैल्यूएशन की वजह से आप बहुत ज़्यादा उसमें नुकसान में आएँगे और यही आपके साथ भी हो रहा है। तो जो रिसेंटली कुछ लोग मूव किए हैं पाकिस्तान से यूएई,
इसी पर्सपेक्टिव से कि यूएई के अंदर सिक्योरिटी है और स्टेबिलिटी है और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इसमें मैं कुछ चीज़ें आपको बताता हूँ यहाँ पर। देखिए, गोल्डन वीज़े का बहुत फ़ायदा है। गोल्डन वीज़े के मैं सो मच सो दैट अगर आपको पाकिस्तान वापस जाके रहना भी पड़े लेकिन आपके पास गोल्डन वीज़ा है, तो फिर इससे अच्छी कोई चीज़ ही नहीं है। आप सोचें, लोग इस वक़्त 2-2 मिलियन डॉलर्स की दिरहम्स की प्रॉपर्टी खरीदते हैं सिर्फ़ और सिर्फ़ गोल्डन वीज़ा लेने के लिए। तो उसमें जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो ये है कि आपका बैंक अकाउंट यूएई में खुल जाएगा, और वन्स आपका बैंक अकाउंट खुल जाता है, फिर आपके पास, चाहे वो पाकिस्तान में हो, चाहे आप कहीं भी हो पूरी दुनिया के अंदर, आपको एटलीस्ट ये मसला नहीं होगा कि फ़ॉरेन बाहर से आपकी पेमेंट्स आ रही हैं, तो उसके अंदर जो पाकिस्तान के अंदर बैंक अकाउंट में पेमेंट आती है, जब हिट करती है तो रुपये की डिवैल्यूएशन हो जाती है, एंड सो फोर्थ। आपको यहाँ पर यूएई में रहने के लिए कोई अलग से कंपनी फॉर्म नहीं करनी पड़ेगी, जो कि बहुत एक्सपेंसिव होती है। अगर आपको बैंक अकाउंट मेंटेन करना है तो आपको कंपनी फॉर्म करनी पड़ेगी। एक पर्सनल बैंक अकाउंट आप रख सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी आपका कुछ ना कुछ लिंक होना चाहिए यूएई से, या पहले होना चाहिए या बाद में होना चाहिए। तो कुछ ना कुछ मसला होता है, बैंक अकाउंट इतना आराम से नहीं खुलता। गोल्डन वीज़े से 10 साल के लिए आपको सुकून होगा कि मेरा बैंक अकाउंट खुला हुआ है, मेरी ट्रांज़ैक्शंस बाहर की जो होंगी वो यूएई का बैंक अकाउंट हैंडल कर लेगा। फिर आपको ट्रैवलिंग में भी आसानी होती है अगर आप यूएई के रेज़िडेंट। और फिर सबसे बड़ी बात जो गोल्डन वीज़े का फ़ायदा है कि आपको अगर ट्रैवल करना है, 6 महीने से ज़्यादा आप बाहर रह चुके हैं, तब भी कोई वीज़े पे इम्पैक्ट नहीं आएगा। आप आना-जाना आप 1 साल, 1.5 साल, 2 साल बाद भी करना चाहते हैं, तो यूएई में कर सकते हैं। बहुत सारे फ़ायदे हैं। लेकिन एट द सेम टाइम गोल्डन वीज़े का जो मसला है, जो मिसकॉन्सेप्ट है लोगों को, वो ये कि वो यहाँ पर उनको अगर नहीं पता कि यूएई कितना एक्सपेंसिव है, नॉट ओनली कि एक्सपेंसिव है, फैमिली की जो मेडिकल एक्सपेंसेस होते हैं, और जो यहाँ पर इसके अलावा जो एक्सपेंसेस होते हैं स्कूलिंग वगैरह के, वो बहुत एक्सपेंसिव है। एंड इफ यू आर अर्निंग इन पाकिस्तानी रूपी, तो आप सोचें कि आपको लेट से 10,000 दिरहम करने के लिए ही 8 लाख रुपए पाकिस्तान में चाहिए, और जब वो पैसे यहाँ पर मंगवाएंगे आप, और वो जो आपको एक्सचेंज रेट का फर्क पड़ेगा, जो बाइंग एंड सेलिंग का डिफरेंस आता है, तो वो एक अलग से हिट पड़ेगी। यानी कि अगर 85 का अगर दिरहम इस वक्त है, तो मेरे ख्याल से आप जब मंगवाएंगे तो वो इस वक्त 90 का पड़ रहा होगा शायद, या हो सकता है 87 का पड़ रहा हो, तो वो आपको अलग से 3-4 रुपए का अलग से डिफरेंस वो अलग पड़ रहा होगा। तो अभी जो रिसेंटली लोग यहाँ मूव कर रहे हैं, मैंने देखा है जो पाकिस्तान से बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स, आपका भी कुछ मीडिया इंडस्ट्री से मुझे लिंक लग रहा है, लेकिन अगर आप देखें तो जो कंटेंट क्रिएटर्स मूव किए हैं रिसेंटली, उनके जो मेजर रीजंस थे मूव करने के, कुछ जो कराची से लोग आ रहे थे उनको तो मुझे पता है कि वो सिक्योरिटी की वजह से आ रहे थे, कि वहाँ सिक्योरिटी के मसले लग रहे थे उनको, मगिंग, स्नैचिंग और इस तरह की चीज़ों की वजह से। प्लस ये कि उनको जो बाकी लोग आ रहे थे, वो एक रीज़न सबसे बड़ा ये भी है कि अगर आप एफ्लुएंट हैं और आपके पास पैसे अच्छे आ रहे हैं, आपकी इनकम स्ट्रीम अच्छी हो गई है, तो आपको जो डॉलर में हिट पड़ रही होती है बार-बार पैसे मँगवाने में, वो एक अलग मसला था। आपको बाहर की ब्रांड्स के साथ कोलैबोरेट नहीं कर पाते थे उस तरह से, आपको जो पैसे मिलते थे वो पाकिस्तानी रुपये में कन्वर्ट हो जाते थे। वो सारी चीज़ें ये गोल्डन वीज़ा रिज़ॉल्व कर देता है, और उसकी वजह से बहुत सारे लोग जो मूव किए हैं पाकिस्तान से यहाँ पर, अब मैं ये भी देख रहा हूँ कि कुछ लोग उन लोगों को रियलाइज़ हुआ है कि ठीक है, यहाँ पर आना तो अच्छा है, यहाँ पर अपना अकाउंट होना चाहिए, सब कुछ ठीक है, लेकिन यहाँ पर रहना और सस्टेन करना इतना आसान नहीं है। तो उसकी वजह से अब लोग, कुछ लोगों को मैंने देखा है कि वापस पाकिस्तान मूव किए हैं, अपना लीगल स्टेटस यूएई में रखते हुए, फिर वो वापस मूव 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 बैक किए हैं। कुछ लोगों को मैंने इस तरह भी देखा है, जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो मूव किए हैं यहाँ पर, वो अब अपने पाकिस्तान वाले काम को भी देख रहे हैं, और यहाँ पर नए तरीके से अपनी ऑडियंस बिल्ड कर रहे हैं, जिसमें वाक़ई मुश्किल होता है, टाइम लगता है। आप अगर इतना टाइम से यहाँ पर हैं, तो मैं ये सजेस्ट करता आपको, पहले भी और अब तो ख़ैर कर रहा हूँ, कि आपको यहाँ पर अपनी इनकम स्ट्रीम बना लें। मैं अगर आप मुझसे इन्वेस्टमेंट्स की बात करेंगे, तो आपकी जो सिचुएशन है उसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट्स को अभी ना देखें, अभी आप अपनी इनकम स्ट्रीम बनाने की सोचें। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप पाकिस्तान मूव हो जाएँ। अगर आप पाकिस्तान मूव हो जाएँगे तो आप बड़ा इम्पैक्ट देखेंगे, और हो सकता है 1 साल 2 साल के बाद आपको वापस आप यहाँ पर मूव होने की पोज़ीशन में आ जाएँ। लेकिन जो सिचुएशन आप मुझे बता रहे हैं, तो आपका बेहतर ये है कि आप मूव हो जाएँ पाकिस्तान, और आपका गोल्डन वीज़ा स्टेटस फिर भी रहेगा। वो इवेंचुअली आप 1 साल, 2 साल, 3 साल बाद दोबारा सोचते हैं तो दोबारा आ सकते हैं। इस पे एक बहुत इंटरेस्टिंग, मैंने एक वीडियो में भी बात की थी कि लंदन अंडरग्राउंड की एग्ज़ाम्पल थी उसके अंदर, कि लंदन अंडरग्राउंड के अंदर उन्होंने एक दफ़ा टेस्ट किया, और उसके बाद उन्होंने हर जगह क्लॉक्स लगा दी थी, और उसके बाद उसको सिंक्रोनाइज़ कर दिया था ट्रेन की, जो जो उसके अराइवल टाइम है। जो बंदा बैठा हुआ होता है, ट्रेन का वेट कर रहा होता है, उसको पता ना हो कि ट्रेन कब आएगी, 1 मिनट में आएगी, 8 मिनट में आएगी, तो वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। जब बंदे को पता होता है कि टाइम पता आ रहा है कि यार 8 मिनट लिखा हुआ है, 8 मिनट में मेरे पास ट्रेन आ जाएगी, चब ठीक है, अब देर है लेकिन मैं कुछ ना कुछ कर लूँगा उस टाइम में। तो वो जो टाइम होता है, वो बंदा आराम से गुज़ार सकता है, कंपेयर टू इवन अगर 1 मिनट बाद आ भी जाए, लेकिन वो अनसर्टेन होता है
तो उसमें टाइम गुजारना मुश्किल होता है। तो मैं आपको इसीलिए ये कह रहा हूँ कि अगर आप लेट्स से पाकिस्तान मूव करते हैं और आपको ये एश्योरेंस है कि आपके पास दुबई का वीज़ा है, तो इट इज़ अ गुड इनफ एश्योरेंस कि आप वापस मूव हो जाएँ। कम से कम 1-2 साल मूव करके वहाँ पर रहें, थोड़े से पैसे बनाएँ। उसके साथ-साथ यहाँ पर यूएई के अंदर कुछ आप खुद अकेले आना-जाना कर लें, थोड़ा-सा बिज़नेस डेवलप यहाँ पर भी करें। मैं जो जितने आपको मैं यहाँ कंटेंट क्रिएटर्स बता रहा हूँ, जो लोग यूएई मूव करेंगे और यहाँ की ब्रांड्स के साथ कोलैबोरेट नहीं करेंगे, वो सस्टेन नहीं कर पाएँगे। पाकिस्तान की बेसिस के कितनी भी अच्छी इनकम हो जाए, आप यहाँ पर उस तरह से सस्टेन नहीं कर पाएँगे। आपको हर सूरत में यहाँ की ब्रांड्स के साथ कोलैबोरेट करना है, यहाँ के काम को करना है ताकि आपकी इनकम को दिरहम बेस्ड इनकम बन जाए वो। पीकेआर बेस्ड इनकम के ऊपर आप यूएई के अंदर सर्वाइव करना आपका मुश्किल है, आजकल के खास तौर पे हालात के अंदर। तो मेरी तरफ से आपको जो 2-3 मैं कहूँगा सजेशंस हैं। पहली सजेशन ये है कि अगर आप मूव कर सकते हैं तो मूव बैक पाकिस्तान। 2 साल 3 साल के लिए कोई इतना बड़ा टाइम नहीं होगा, फैमिली भी बर्दाश्त कर लेगी। उनको अगर ये पता हो ना कि आप मूव बैक कर सकते हैं, तो बहुत आसान होगा। आपने आप अच्छा खासा टाइम गुज़ार लिया है, तो आप इतना मसला नहीं है। ठीक है, वहाँ पर दूसरे किस्म के मसले हैं, लेकिन अगर आप अपने पैसों को यहाँ पर रहते हुए पाकिस्तान के पैसों से गुज़ारा कर रहे हैं, तो पाकिस्तान में बहुत अच्छी तरीके से गुज़ारा कर सकते हैं। इन द मीनवाइल जब तक आप 1-2 साल पाकिस्तान के अंदर हैं, यहाँ पर बिज़नेस सेटअप करने की सोचें। अगर आप बिल्कुल भी नहीं चाह रहे कि आप मूव करें पाकिस्तान, तो मैं फिर भी यही कहूँगा आपको कि यहाँ पर आपको हर सूरत में अपना दिरहम बेस्ड इनकम को देखना चाहिए। पाकिस्तान बेस्ड इनकम ठीक है आपकी चल रही है, लेकिन आपको यहाँ पर यूएई बेस्ड इनकम को भी देखना चाहिए और उसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट्स की बात करेंगे आप मुझसे, तो इन्वेस्टमेंट्स आप डेफ़िनिटली करें। लेकिन आप कितनी इन्वेस्टमेंट कर लेंगे? अगर आपके पास पैसे बच ही नहीं रहे हैं, तो वो आप क्या क्या इन्वेस्टमेंट करेंगे? तो इन्वेस्टमेंट आप करें डेफ़िनिटली, लेकिन वो बहुत सारे मैं आपको फ़ॉर्मूलाज़ बता सकता हूँ, लेकिन वो ये तो डिपेंड करता है ना कि आपकी इनकम कितनी है और आपके एक्सपेंसेस कितने हैं यहाँ रहते हुए। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन दैट। तो यहाँ पर मैंने एक रॉन्ग इन्वेस्टमेंट माइंडसेट के लिए एक वीडियो बनाई थी, यहाँ पर उसका लिंक लगा दिया। इसके अलावा आप क्योंकि कंटेंट मीडिया से रिलेट करते हैं, तो मैं आपको कहूँगा कि ये वीडियो जाके देखें। इसके अंदर शॉर्ट क्लिप है, शॉर्ट क्लिप मैंने बनाई थी एक दोस्त के साथ। एक पूरी फुल पॉडकास्ट की ये शॉर्ट क्लिप है, जिसके अंदर मैंने स्टोरी टेलिंग के बारे में बात की थी और काफ़ी अच्छा उसमें इनसाइट थी। आप उसको जाके देख सकते हैं। कैसी लगी वीडियो प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।